Yes. Yes, sir. Okay, that's great. And so in today's topic, we have to learn about the average and the measures, right? Yes. Correct? Okay. So hold a moment. Lecture books. Okay, fine. So what do you mean by average, Meenakshi? Average. Yes. एवरेज मतलब कि जैसे टोटल में से क्या एवरेज निकल मतलब कि व्हेन वी हैव अ वैरायटी ऑफ मेजर्स और वैरायटी ऑफ नंबर्स कुछ वैल्यूज हमारे पास बहुत सारी होती है तो उसमें से हम कुछ एवरेज निकालते हैं कि ये सबका एवरेज है मतलब कि राउंड ऑफ करके सबका कि ज्यादा Yes. किसी से किसी वैल्यू से कोई Right. नंबर दूर भी ना हो और मतलब Okay. Average का basic meaning है for each value there should be the equal amount. For each value there should be the equal amount. Let's see the example. मैं एक example लेता हूँ for telling you. Yes. Tell me. फॉर Tell ईच me. वैल्यू We each value सर फॉर has ईच same वैल्यू amount. Same. मैं अभी बताता हूँ. Wait. मैं पहले example देकर समझाता हूँ. Then you will write. Okay. ओके Understand? Suppose that यस Monday को आपने 10 chocolates खा लिया. कितने chocolates? 10 chocolates. Right? Tuesday को यस आपने 15 chocolates खा लिया. Right? Wednesday को आपने सिर्फ 5 chocolates ही खाया है. Okay? And on the next यस day, on Thursday, you have eaten again 10 chocolate. Okay? And on Friday, यस you have eaten 20 chocolates. Correct? So 5 days के अंदर आपने कितने chocolates खाए पहले तो वो निकालेंगे. Total कितना chocolate हो गया? What is the total amount of chocolates? Can you count it here? सर 10, 25, 30, 40, 60 चॉकलेट्स Right. So यहाँ पे 60 chocolates आप total खा चुके हो. करेक्ट लेकिन पर डे तो यस सेम नंबर नहीं खाया ना कभी 5 खाया कभी ज्यादा खाया कभी कम खाया राइट यस सो इफ एनी पर्सन सेज मी यस on average on average or you can say on daily basis डेली बेसिस how many chocolates you have eaten so simply 60 by 5 कर देंगे so you have eaten 12 chocolates on average daily मतलब अगर आप 12 chocolates daily भी खाओ तो बराबर बराबर आप तो खा भी सकते हो 60 टोटल यस आप 12 चॉकलेट्स अगर खाओगे पर डे मतलब ऑन एन एवरेज 12 चॉकलेट इज योर एवरेज वैल्यू दैट मींस आप 12 चॉकलेट भी खाओगे तो भी कोई दिक्कत खत्म नहीं होगा राइट यस correct so this is the way how we do the average understand so actual यस definition of the average I will just let you know give me a second so you can say this is the central value. This is what? A central value. सेंट्रल वैल्यू Average is what? A calculated central value. If you want to make a note, you can make a note here that a calculated central value of set of number is known as average. और बेसिकली अगर हम लोकल लैंग्वेज में अगर देखें तो एवरेज क्या है हर डे को हर वैल्यू को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है राइट इज यस इट क्लियर यस Okay, fine. Shall we proceed? यस यस सर Okay, fine. Now I'm proceeding. So, in average, you have to be familiar with mean, median, mode, like this. Okay. So, I'm taking one example and then I will let you know यस how to do mean, median, mode, everything. Okay, fine.
Yes, Okay. yes. I'm just going to let you know. Give me a moment. Give me a moment, please. I'm taking one question for you. Okay. Yes. Okay. Wait a second. Oh my God, ये क्या खुल गया? Yes. Can you see this here? Can you see this value? Yes. Okay. In this value, हमें तीन चीजें निकालनी है. क्या चीजें निकालनी है? Three things. We have to find the mean. You have to find what? Mean, median, and mode. हमें three things निकालनी है. Okay. So सबसे पहले मैं mean लेके बताता हूँ आपको. What does it mean? Mean में क्या करना है? We have to add all the values. What we will do that? We will add all the values and we'll divide by the number of observation. of values. Yes. So add karo. So 4, 7, 6 plus 6 plus 7, 4 plus 8 plus 3 plus 8 plus 11 plus 6 plus 8 plus 6 plus 3 plus 5 plus 6, 7, 6 plus 4. And this is how many values? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So I will divide by 19. Can you add them together and can you find the value, please? Yes, sir, I'm adding them. Yes, please go ahead. Plus 4 plus 8 plus 3 8 plus 11 6 8 Sir, 115 upon 90. 115 upon 90. 5. नहीं 115 upon 90 नहीं हुआ. चेक करो अच्छे से. Please check it. 4 plus 7 plus 6 plus 6 7 4 8 3 8 11 6 8 6 3 oh shit. 715 आ रहा है. Okay. 715 ही आ रहा है. 11 नहीं 115 ऐड करने पर. हाँ जी. ओके ऐड करने में ठीक है. देन 115 डिवाइड बाय 19 करो. 115 by 19 6.05. 6.05. So 6.05 is your mean value, right? Understand? Yes. अब बात करते हैं. Yes. अब बात करते हैं तो मीन समझ में आ गया. So mean का फॉर्मूला अगर लिखना चाहो, so you can write down here sum of all values. Sum of upon number of observations. Right, correct. So make a note of it fast. Is it clear, Meenakshi? Yes, yes, sir.
ओके, आगे बढ़े। Yes. Okay, fine. So just give me a moment. Give me a moment. Okay, fine. So let's proceed. Next question is हमारा median है, क्या है? Median. तो मैं same question upload कर दे रहा हूँ and we will do the median in this case. So यहाँ पे हम करेंगे median. क्या करेंगे हम लोग? पहले से median. मीडियन करने के लिए आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मालूम है, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़ा लिखते हैं, फिर बड़ा लिखते हैं, राइट? सबसे छोटा कौन है? 3। तो यहाँ लिखो, नहीं 3, देखो 3 है, उसके बाद फिर से 3 आ रहा है, सो राइट डाउन अगेन 3, राइट? देन कौन आया? और कोई नहीं है, सो लेट्स 4। देखो मैं कैसे, सुनो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कट करता जा रहा हूँ, देख रहे हो आप? कट करने का रीजन ये है कि वो दोबारा वो नंबर मैं नहीं लिखूंगा, राइट? ये इस तरीके से हम बच जाएंगे कट करने से। दोबारा 4, तो ये प्रोसेस यूज करना, ठीक है? इससे आपको मिस्टेक करने का चांसेस कम हो जाते हैं। तो 4, उसके बाद फिर और 4 की तरह जी, ये 4 लास्ट में, सो 3 4 हो गए। ओके, 5 है क्या कहीं पे? लेट्स चेक 5। यस 5 भी है, 5 और कहीं 5 नहीं है। 6 है क्या? यस वी हैव 6 हियर, 6 हियर, फिर 6 हियर, फिर 6 हियर, फिर 6 हियर, फिर 6 हियर। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? फिर 7, 7 हियर, 7 हियर, फिर और कोई 7, यस और 7 हियर, फिर 8, 8 हियर, फिर से 8 हियर, फिर से 8 हियर, एंड द लास्ट इज 11। काउंट करके चेक कर लो 19 आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। डू यू क्लियर अबाउट इट? सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलिए, टेल मी। सर पहला डाउट है कि मीडियन क्यों निकालते हैं? मीडियन निकालने से सबसे मिडिल वैल्यू मिल जाती है। सबसे नहीं, मीडियन निकालने से सबसे बीच मतलब की वैल्यू, सबसे क्लोज वैल्यू मिल जाती है। नहीं नहीं क्लोज वैल्यू नहीं, मतलब किसी नंबर से सबसे क्लोज मिडिल वैल्यू, नो मिडिल वैल्यू, मिडिल पोजीशन। तो मिडिल वैल्यू क्यों निकालनी है? मैं एक बात बता रहा हूँ, मिडिल पोजीशन वैल्यू, राइट? अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, चलो एक काम करते हैं, मीनाक्षी काम करते हैं, राइट? आपके क्लास में आपके क्लास में 10 बच्चे मान लेते हैं, कितने बच्चे हैं? 10 10 स्टूडेंट्स हैं, राइट? करेक्ट? यस। मैथ्स का एग्जाम हुआ 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ? 50 मार्क्स का, राइट? अभी हम बच्चों के मार्क्स लिखेंगे, बच्चों के मार्क्स लिखेंगे। आई हैव रिटन 25 30 30 20 20 10 5 10 10 35। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट्स नहीं, 11 स्टूडेंट्स ले लो। कितने स्टूडेंट्स हैं? 11 स्टूडेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ लिख लो 50। कोई दिक्कत है? अब हमें चाहिए कि सबसे मिडिल वैल्यू क्या है। मिडिल वैल्यू मतलब सबसे मिडिल मार्क्स कौन सा है। हमने टेस्ट किया तो बच्चे जो है सबसे मिडिल वैल्यू कहाँ है, मतलब वहां से हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि इस मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू इतनी है तो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, बच्चों ने खराब परफॉर्म किया, वी कैन जज दैट।
we can mark a line, we can put it on the position, we will can put on position. तो अब देखो, अब मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, I will write 5 10 10 10 कैंसल 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 कैंसल, और कहीं 10 है नहीं, उसके बाद क्या है, तो 20 20 और कहीं 20 है नहीं, 25 30 30 35 50 ऑल आर कैंसल, राइट। अब देखो मिडिल मोस्ट वैल्यू अगर हमें चेक करना है, मीडियन इसका निकालना है, तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, द प्रोसेस इज, कैन यू हियर मी, आगे से कट करो, Yes, पीछे से sir. कट करो, आगे से कट, पीछे से कट, आगे कट, पीछे कट, आगे कट, पीछे कट, आगे कट, पीछे कट। देखो तो मिडिल मोस्ट पोजीशन, मतलब सबसे मिडिल, देखो आगे में 5 बच्चे खड़े हैं, पीछे में 5 बच्चे खड़े हैं, तो सबसे मिडिल में कौन सा नंबर लेके खड़ा है, सबसे मिडिल में 20 मार्क्स वाला स्टूडेंट आता है, अंडरस्टैंड। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि इससे आधे क्लास के जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म किए, या किधर किस साइड के बच्चे अच्छा परफॉर्म किए, वी कैन फाइंड दैट, अंडरस्टैंड। सर इससे ये कैसे पता चलेगा कि किस तरह के कैसे बच्चे परफॉर्म किया? देखो अभी इसके बाद की वैल्यूज क्या क्या आई है, व्हाट वैल्यूज यू गॉट, हाफ ऑफ द क्लास 30 35, अगर यही वैल्यूज 30 के बिलो हो जाता सारे के सारे, सो दे हैव परफॉर्म नॉट वेल। इसमें डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, अगर 30 हो जाते तो, अभी 50 है तो कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, सो दे हैव परफॉर्म वेल। अगर यही वैल्यू 25 हो जाती, आई विल जस्ट राइट डाउन हियर लाइक दिस, I will just write down like this, 25 25 27 and 28. So what is the difference here, the 8 marks is difference, right? तो ये statistics है। आप देखते हो ना, भारत के जो statistics फाइनेंस के विभाग होते हैं वो सब कैसे कैसे जोड़ते हैं, right? So all these are from the statistics. So when you will grown up, बड़े हो जाओगे, so you will understand better. अभी मीन निकालने का तरीका ये है जो मैंने आपको बताया है, डू यू क्लियर दैट? यस। सो कैन यू फाइंड द मीन वैल्यू फॉर इट, मीन वैल्यू। अब देखो मीन वैल्यू भी, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डू यू हैव, 19 19 is a odd number, 19 is a odd number, इवन होता तो हम जो बीच वाले होते उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते। गुड, दैट्स ग्रेट। चलो इसको फिर निकालो फिर, सर एक मिनट, सर 6। okay, got it, how to do it, right? मीनाक्षी, do you understand? So आपने यहाँ पे निकाल लिया, मीडियन है 6, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत इसमें आई समझने में? सर मीडियन क्यों निकालना, वो तो पता चल गया कि हमें ये मिडिल मोस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, राइट। लेकिन सर हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में करके क्यों निकालना है? हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में क्यों करके निकाला है, क्योंकि मीनाक्षी जब कोई इंसान नंबर पाता, जैसे यहाँ बच्चे थे, आपने देखा कुछ बच्चे के मार्क्स कम आए, कुछ बच्चे के मार्क्स ज्यादा आए, राइट? तो उनको पहले हमें लाइन में खड़ा करना पड़ेगा, लोअर टू हायर, तब हम जज कर पाएंगे ना, हमें ठीक से पता चल जाए। राइट, करेक्ट। नहीं तो देखो ना, मान लो आपके क्लास में रोल नंबर 15 रोल नंबर को 0 मार्क्स आया, 16 को 0 मार्क्स आया, बट ही इज स्टैंडिंग ऑन द मिडिल पोजीशन, आप उसको मिडिल पोजीशन मानोगे क्या? बताओ। रोल नंबर 15 को 0 मार्क्स आता है, सो यू विल कंसिडर इट एज अ मिडिल मार्क्स ऑफ द क्लास, मिडिल मार्क्स ऑफ द क्लास नहीं मान सकते ना,
ही इज द स्टार्टिंग वन, जिसको 0 है, वो उसको सबसे पहले खड़ा करना पड़ेगा 0 लोअर में, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस। अच्छा, दूसरी चीज और, एक चीज और, सपोज कर लो कि हमें, सपोज कर लो कि हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं। क्या प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स हैं। 11 प्लेयर्स में से सिर्फ 5 प्लेयर्स हमें चूज करने हैं। कितने प्लेयर्स? 5. 5 प्लेयर्स। तो हमें मतलब आधे प्लेयर्स को चूज करना है, आधे प्लेयर को चूज नहीं करना है। मेरा क्या कहना है कि आधे प्लेयर को चूज करना है और आधे प्लेयर्स को चूज नहीं करना है, राइट? तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि उनको चूज करने के लिए मिडिल नंबर, हमें जब हाफ हाफ करना है तो हमें मिडिल मोस्ट वैल्यू तो चाहिए ना। तो हम रोल नंबर के बेसिस पे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया हम उसको ले सिलेक्ट करेंगे, जिसने खराब परफॉर्म किया उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे अपने गेम में, राइट? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? सो वी हैव गिवन द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स में हो सकता है 2 बच्चे 3 बच्चे सेम नंबर लेकर आ जाए, राइट? सो इन दैट केस मिडिल नंबर हमें निकालना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग द मिडिल नंबर। उसके ऊपर के जितने बच्चे होंगे उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके नीचे के जितने बच्चे होंगे उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? यस। अच्छा, अब बात करते हैं मीडियन निकाल, मीनाक्षी अब बात करते हैं मोड निकालेंगे। मोड, कैन यू हियर मी? क्या बात करेंगे हम लोग? मोड। Meenakshi, I cannot hear you properly. Can you hear me? Please rejoin. Sir, yes, I can hear you. Okay, okay. Okay, sir. So नहीं ठीक है, don't join. अगर आप सुन पा रहे हो तो it's okay, fine. Okay. Yes. Mode is most frequent value. Mode is what? Most frequent value. अब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार आया है, राइट? तो इसका भी रूल यही है कि यू हैव टू राइट डाउन इन द असेंडिंग ऑर्डर। यू हैव टू राइट डाउन इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड देन यू कैन वेरीफाई। अब आप देखो 3 कितनी बार आया? ओनली 2 times. This coming 3 times. This coming 1 times. This coming how many times? 6 times. This coming 3 times. This coming 3 times and this coming 1 time. सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर कौन है? Who is coming? 6. So our mode answer will be also 6. Mode का सिंपल है, सबसे ज्यादा बार कौन आया, right? Understand? Yes. Please make a note of it. Sir, बना लिया note. बना लिया आपने? बहुत बढ़िया. Okay. बहुत बढ़िया. So we will go for some more now. Okay. So I'm taking one question and we will see how to do it. Okay. एक example और देखते हैं. I will help you in this example. Can you see this example? Yes. Please read it. After 6 tests, Graham has a mean average score of 48. He takes a 7th test and scores 83 for the test. What is Graham's total score after 6 tests? Okay. तो उसने 6 टेस्ट किए, ग्राहम का मेन एवरेज स्कोर 48 है, उसने 7 दिया, जिसमें उसने 83 स्कोर किए। तो इसमें बताने की टोटल स्कोर कितना है आफ्टर 6 टेस्ट। राइट। सो सिंपल क्या करेंगे? अब देखो मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल लो 6 टेस्ट दिए उसने, राइट? तो हम टेस्ट को लिखेंगे, कैन वी राइट डाउन मीन इज इक्वल्स टू टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, test number 4, test number 5, test number 6, divide by 6, that will give me 48. Am I right? Okay, yes sir. So yes. Now if you see this value is what? This value is sum of the test. Sum of total, or you can say sum of, or you can say total score of the test. Am I right?
Am I right? Yes. Divide by 6 Yes. times 48. So अगर आपको total score निकालना है, so you can just simply write down 48 times 6. कितना हो जाएगा? 24, 40, 280. It will become 288. Right? Yes. Do you understand? Yes. पार्ट ए ये है. पार्ट बी कहता है कि व्हाट इज द ग्राहम मीन्स एवरेज आफ्टर 7 टेस्ट. मेरी बात ध्यान से सुनो. T1 से लेके T6 की वैल्यू कितनी हो गई? 288. Yes. So and 7th टेस्ट में कितना स्कोर किया उसने? 7th टेस्ट में 83. So can we write down here sum of all 7 tests? Sum of all 7 tests को हम लिख सकते हैं 6 test score plus 83. Can we write that? Yes. Can we write like this? तो Yes. sum of all 7 tests निकालो कितना आया पहले वैल्यू. So 83 ऐड करना पड़ जाएगा 288 में. That's going to be 371. Any problem? No. Now we have to find the average. Average बोल लो, mean बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो. मैं mean बोल देता हूँ. So now we have to find the mean. So mean के लिए क्या हो जाएगा? 371 by 7. Understand? Yes. So this becomes 53 is the average score of all 7 tests. Do you clear that? Yes. Any problem? No. Understand everything? Yes. Okay, that's great. That's great. Give me a moment. So, shall we go for some questions? Yes. Okay, fine. I'm taking few problems. Exercise 12.1 I'm taking. Okay. So, Yes. can you see the question, please? For each of the following sets, calculate the mode. बस आप इसको बनाओ. Just go for the first one. A. ठीक है sir. Yes. Sir, mode at 12. Right, go ahead. Sir, median and 9. Okay. Mean. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 12 plus 13. 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sir, 8. Mean is 8. Excuse me, sir. हो गया. Please check it from book your answer. सर ठीक है सर. Okay. Okay, great.
चलिए आगे बढ़े, चलिए मूव। यस सर। तो आप एक काम करो, आप इसका ना सी पार्ट भी एक बार ट्राई करो, ट्राई फॉर द सी पार्ट ऑल्सो, बिकॉज इस डेसिमल में है, सो लेट्स डिफरेंट, गो फॉर द सी। सर यस, सी पार्ट में तो 2 में वो है मोड। तो मोड 2 है। यस। ओके, लेट मी चेक, हो सकते हैं तो। लेट मी सी। सी पार्ट में 2 मोड आ गया आपको। ओके, 2 मोड कैसे आ गए, लेट मी सी। 2.1 2 टाइम्स, 3.8 नहीं है, 2.4 भी नहीं है, 7.6 नहीं है, 8.2 2 times. You have a new message. Can you check the book what they have told? सर उन्होंने तो दोनों को दिए हैं। दोनों देना, so take it both, no problem. Take it both, no issue. Okay. Fine. ठीक है सर। और यस सर मीडियन आया 4.15, टोटल वैल्यूज 10 थी, तो जो 2 बचा वो मैंने ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, पीछे भी यही दिया है। Right. और Okay, ठीक मीन है, है 47.9। ठीक है, no problem. Okay. सर लेकिन पीछे तो 4.79 दिया है। And what you are getting? 47.9। Mean. Are you getting mean that much? तो डिवाइड नहीं करोगे? सर सॉरी मैंने डिवाइड नहीं किया। हाँ तो डिवाइड करो। 4.7।
आ गया आंसर 4.79 आएगा. Okay. Understood? Shall we move? Yes. Okay. We are moving ahead. We are taking another topic. Sorry, topic in this is question. This one. Uploading. Read the problem and try to do it. I think you can do. Can you try? Yes, sir. Yeah. Andrew and Barbara decide to investigate their television watching patterns and record the number of minutes they watch the television for 8 days. तो ये एंड्रयू के और ये बर्बरा के find the median number of minutes spent watching television for each of Andrew and Barbara. सर तो इसमें तो मीडियन लगाना था बस. हाथ निकालिए. सर एंड्रयू का मीडियन नंबर आया है 54. Okay. सर और बर्बरा का आ रहा है 48.5 मीडियन. Okay. सर और एंड्रयू का मीन आ रहा है 84.25. Okay. Check from the book. Is it correct answer? सर एक मिनट.
सर 12.1 का 54 8.5 84.25 सर ठीक है सारे 4 वैल्यूज ठीक है हो गया Okay. Give me a moment. Okay, fine. So, give me another one. Ready? yes Taking one more question here. And this one, I think you can go for it easily. Try this one, fifth number. Akil 10 big bowler plays 5 rounds in one evening. His scores are 98, 64, 103, 108, and 109. Which average, mode, mean, or median will he choose? 7 minutes. Which average, mode, mean, or median will he choose to report to his friends at the ending of the evening? Explain your answer carefully, showing all your calculations clearly. सर आई गेस उसको मोड बताना चाहिए Hmm. नहीं सर उसको आई गेस उसको मीन बताना चाहिए Okay. क्योंकि मीन एवरेज होगा तो वो सबका आ जाएगा Mm, okay, fine. Go ahead. मीन ही आएगा ना सर Mean. Go for mean. Go for mean, please. सर 96.4 Okay, check it. Check from the book, please. ठीक है लेकिन सर इन्होंने बोला है कि मोड है नन मीन इज 96.4 और इन्होंने मीडियन भी निकाला है 103 and they are saying that he'll choose the median because it's the highest तो बोल रहे हैं कि Okay. मीडियन निकालेगा ठीक है तो मीडियन निकाल के देख लो कितना आता है
Check it for median also. The median तो 103 आ रहा है. Okay. ठीक है. Can you hear me? Yes. Okay. Okay. Giving other one. Ready? Yes, sir. Yeah, go for this one. ये बहुत आसान है. You can go it easily. Uploading. Yeah, go for it. Mean height दे रखा है. Sum of height निकालना है. Can you see that? क्या करोगे? Simply Yes. multiply कर देना है. क्या Yes, करोगे sir, आप? हो जाएगा. Simply multiply. Sir, 4451.6. Okay. Check the answer. So ठीक है. ठीक है. Okay. ठीक है मीनाक्षी. So we will meet on another day, right? I'm ending the class right now, so आप Okay, sir. 12.1 पूरा कर लेना. Okay, and then we will meet further. ठीक है. Fine? Okay, bye. Take care. Thank you, sir. Yeah.